हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी here, there is original name is Saudin Muhammad. There is a most important in AD 1173 is a Saudin's is a Muhammad is AD is a time period is a 1173 to 1206. Also is called to Muhammad of Gauri is ascending to the throne of the Ghazni. The Gauri there is not strong enough to meet the growing power and strength of the here Khwarizmist empire, and they realized that is could be again nothing is a Central Asia, and this forced the Gauris to be turned to about to the India is a fulfill the explanation ambition. Muhammad Gauri was a very much interesting in the establishing permanent empire in India is not a merely is a lootings, it is a hell wealth. His accomplices were to the well of organized and the whenever a controlled any territories is left or general behind to the governor, it's his absence. His invention is resulting in the permanent establishment of the Turkish and sultanas in the regional landing north of the is a Vindhya mountain. The Vindhya mountain is the most important here. Conquest of the Punjab and Sindh, there is the most important here. Muhammad Gauri is the lead to the first expansion in AD 1175. He marched to the against the Multan and freed its form of ruler. In the sum is the compass is the capture of Kuch from a Bhaktis is a Rajput. 3 years later, in the AD 1178, is again marched to the conquer Gujarat, but there is Chalukya is ruler of Gujarat is a Ghima is two is defected him at the battle of the Anhilwara. But his the defeat did not be discouraged of Muhammad Gauri. He realized the is a necessity of the creating a suitable base of Punjab before venturing on the further is a conquest of India. There is a most important area. He launched a campaign against the Ghaznavis of competitions in Punjab. As a result, Peshawar was unquarried in the AD 1178 to 80 and the Lahore in AD 1186. The fort of Silicot and the walls where is captured next. Thus, by the AD 1190, having a secure Multan, Sindh, and Punjab, Muhammad Gauri had a paved there is a way from to further thrust into the Gangatri Dwabs. The first battle of here at Tarai. There is a Tarai is AD 1190 on Tarai is the first battle. Muhammad Gauri is a positions of Punjab and the attempt to the advance into the Gangotris Dwabs both him into direct conflict with the Rajput ruler Prithvi Varaj Chauhan. Prithvi Varaj Chauhan, he is the head of the awareness around many a small state is a Rajputan and captured Delhi and the wanted to extend his control over Punjab and Ganga Valley. The conflict started with the claim of the Bhatinada and in the first battle fight at the is a Tarai in AD 1191. Gauri as an army was routed and his novelist escape is a death. Prithvi Raj is a conqueror to the Bhatin, but is a made noisy effort to the Garios sons of affected. And this give a Gauri his opportunity to reassemble his force and make a preparation from another advance into India. The second battle of Tarai, there is most important AD 1192. The second battle of Tarai, there the battle of regarded as one of the turning point in India history. The Muhammad Gauri is made very carefully preparation for his conquest, the Turkish and the Rajput force again, and come to a face to face at the Tarai. The Indian force where is more and number, but Turkish force were well organized with the shift of moving forward. And the bulk is India is a force where to no matches against the supplies or organization.
skill and speed to the Turkish cavalry. And there is a Turkish is a cavalry using two separate techniques. The first was the horse versus there is a give there is a horse was a long life protect their hooves. And the second was the use of the iron straps which give a good hold to your horse ride and a better strickling power in their battle. A large number of Indian soldiers were killed. Prithviraj tried to escape but was captured near Saraswati. The Turkish army is captured the fortress of the Hasis and Saraswatis and the Samana. There is a move here forward running over Delhi to the Ajmer. After the Tara is Gauri returned to the is a Ghazni is a leave their affair to India in the hand of his the trusted and slave generally Kutubuddin Aibak. The Kutubuddin Aibak a slave here. In AD 1198, Muhammad Gauri again returned to the India. He crossed the Yamuna with the 50,000 cavalries and the move to about to the Kannauj. And his give the crisis is a defeat to the Jai Chand to the Chandrawar near Kannauj. And thus the battle of the Tarai and the Chandwar is led to the foundation of Turkish rule in northern India. The political is achievement of Muhammad Gauris in India were long lasting than those of Muhammad of Ghazni. While the Muhammad Ghazni was mainly interested in the ponderings of Muhammad Gauris want to establish the political control. His death in AD 12,006 did not mean to withdraw of the Turkish interest in India. He left behind his slave generally Kutubuddin Aibak, who became a first Sultan of the Delhi Sultan. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है मोहम्मद गौरी। देखिए मोहम्मद गौरी जो है जिसको हम शाहुद्दीन मोहम्मद भी कहते हैं। मोहम्मद गौरी के जो है स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार है। कहते हैं सन 1173 में शाहुद्दीन मोहम्मद उर्फ मोहम्मद गौरी ने जो था 1173 से लेकर 1206 तक अपना जीवन यापन किया। कहते हैं गजनवी की गद्दी पर बैठा और देखा जाए तो ख्वारिज़म जो है साम्राज्य की बढ़ती शक्ति तथा बल का सामना करने में गौरी वंश सक्षम नहीं था। अंत उन्होंने भाप लिया था कि मध्य एशिया से उन्हें कुछ ही हासिल होने वाला नहीं है, यानी मध्य एशिया से उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, जो इस बात का संकेत था। अंत उन्होंने जो है मोहम्मद गौरी को अपनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए भारत की ओर मोड़ दिया, यानी भारत की तरफ जो इनका रुख होते चला गया। मोहम्मद गौरी भारत में जो लूटपाट करने के स्थान पर अस्थायी शासन की स्थापना के पक्ष में था। उसके सभी अभियान जो सुनियोजित थे तथा उसने हर जीते हुए क्षेत्र में एक सेनापति की नियुक्ति की थी जो उसकी अनुपस्थिति में शासन का संचालन भी कर सके। उसके आक्रमण में परिणाम स्वरूप विंध्याचल पर्वत के उत्तर में स्थायी तुर्की साम्राज्य की स्थापना भी हो गई थी। यहाँ पर जो हमारा आया अगला पॉइंट पंजाब तथा सिंध में विजय। देखिए मोहम्मद गौरी का जो पहला अभियान यही शुरू होता है, पंजाब से लेकर सिंध में अपना विजय के पटाखा जो है इसने लहराया था। मोहम्मद गौरी ने अपना पहला अभियान जो है 1175 में छोड़ा था। उसने जो है मुल्तान की ओर रुख किया और उसे उसके शासक से मुक्त करा दिया। इसी अभियान के तहत अपनी भाटी राजपूतों से जो है कच्छ को भी जीत लिया और सन जो है 1178 में उसने पुण्य गुजरात पर विजय हासिल करने के लिए आक्रमण किया, किंतु गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने उसे जो है अलीवारा के युद्ध में पराजित कर दिया। हालांकि यह हार भी उसे निराश न कर सकी। उसने समझ लिया था कि पंजाब में मजबूत आधार बनाए बिना वह भारत के अन्य हिस्सों को जीत नहीं सकता है, यानी ये बात उसको साफ हो गया कि पहले पंजाब को जीतना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। उसने गजनवी शासकों के खिलाफ पंजाब में अभियान आरंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सन 1169 से लेकर 80 में पेशावर और 1186 में लाहौर उसे कब्जे में आ ही गया, यानी उसने पेशावर और लाहौर को अपने कब्जे में कर लिया। सिलाकोट का जो है किला द्वाब्स जो है अगला शिकार बने और इस प्रकार जो है 1190 तक जो है मुल्तान, सिंध तथा पंजाब को अपने अधीन करने के उपरांत मोहम्मद गौरी ने गंगा के द्वाब में प्रवेश करने की रास्ता साफ अपना कर लिया। उसके पश्चात आता है तराई का प्रथम युद्ध। देखिए तराई का जो युद्ध था बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जो
1191 ईस्वी में लड़ी गई थी। पंजाब पर गौरी का आधिपत्य और गंगा द्वाब में अपने साम्राज्य के विस्तार का प्रयास उसे राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के सामने ला खड़ा कर दिया और पृथ्वीराज चौहान ने कई छोटे राजपूत शासकों को जीतकर दिल्ली पर भी अधिकार स्थापित किया था और उसकी योजना पंजाब तथा गंगा घाटी का विस्तार भी की थी। भाटिया के द्वाबों को लेकर युद्ध आरंभ हुआ और तराई के मैदान में हुए प्रथम युद्ध जो 1191 में गौरी की सेना पराजित हुई और वह भी मरते मरते बचा। पृथ्वीराज चौहान ने भाटिया के जीत लिया पर उसकी जो है मोर्चाबंदी करने का प्रयास उसने नहीं किया। इसने गौरी के भारत पर जो है दोबारा आक्रमण करने के लिए अपनी शक्ति संगठित करने का एक और मौका दे दिया। यानी पृथ्वीराज चौहान बेशकली जो है यहाँ पर जो मोहम्मद गौरी को हरा दिया, लेकिन देखा जाए तो मोहम्मद दोबारा से जो है आक्रमण करने के लिए अपनी शक्ति को जो है आगे बढ़ा। उसके पश्चात था तराई के द्वितीय युद्ध। कहते तराई का द्वितीय युद्ध जो था 1192 में लड़ी गई। इस युद्ध के भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ माना जाता है। मोहम्मद गौरी ने इस आक्रमण के लिए बड़ी चतुराई से तैयारी की थी और तुर्की तथा राजपूत सेनाएं एक बार फिर तराई के मैदान में आमने सामने खड़े हो गए। भारतीय सेना हालांकि संख्या में अधिक थी पर तुर्क सेना अधिक सुयोजित और तेज दौड़ने वाली अश्वरोही टुकड़ियों के साथ थी। भारी भरकम भारतीय सेना किसी भी प्रकार से सुनियोजित कुशल एवं तेज तुर्की अश्वरोहित सेना को मुकाबला नहीं कर सकी। तुर्की ने अपनी अश्वरोही सेना में दो उत्तम तकनीकों का प्रयोग किया। पहली सेनाएं घोड़े के पैरों में नाल लगवाई और पहनाए, जिससे सिर्फ जो है घोड़े की उम्र लंबी हुई बल्कि उससे खुरों को भी रक्षा हुई, तथा दूसरे जो है रकाब का प्रयोग, जिससे घुड़सवार की घोड़ों पर पकड़ बन सकी और युद्ध में वह दुगनी मारक क्षमता का उपयोग कर सके। बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक मारे गए और पृथ्वीराज चौहान ने भी भागने का प्रयत्न किया, किंतु सरस्वती नदी के निकट वह पकड़ लिया गया और तुर्की सेना ने हासी, सुरस्ती और सामान्य के किले पर कब्जा कर लिया। उसके बाद वह दिल्ली तथा अजमेर की ओर बढ़ चले। तराई के युद्ध के पश्चात मोहम्मद गौरी अपने विश्वस्त सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में भारत की सत्ता सौंपकर गजनवी आपस लौट गया और सन 1174 में मोहम्मद गौरी आपस भारत लौटा और उसने जो है 50,000 घुड़सवारों के साथ यमुना पार कन्नौज की ओर रुख किया। उसने कन्नौज के निकट जो है चंद्रवार में जयचंद को पराजित किया और इस प्रकार तराई का जो है चंद्रवार के युद्ध के पश्चात उत्तर भारत में तुर्की शासन की नींव हमेशा के लिए पड़ गई। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के भारतीय राजनीति पर प्रभाव मोहम्मद गजनवी के आक्रमण की तुलना में दीर्घकालिक था। जहां मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य लूटपाट मात्र था, वहीं मोहम्मद गौरी अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना भी चाहता था और सन 1206 में हुई उसकी मृत्यु के बाद भी भारत में तुर्क शासन जो अप्रभावित रहा। उसने अपने पीछे अपने दास सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था, जो दिल्ली सल्तनत का जो है प्रथम सुल्तान बना। अब इसी के जो है विस्तार से हम पढ़ेंगे कि प्रथम गुलाम वंश का राजा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी क्या है।